to the first podcast जिसका नाम है कैंपस और क्लब। तो कैंपस लाइफ का एक बहुत ही इसेंशियल एक्सपीरियंस होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में आते हो तो आप डिफरेंट सोसाइटीज़ और क्लब्स को देखते हो एंड यू वांट टू ज्वाइन। आप देखना चाहते हो कि वो कैसे काम करते हैं। आपको वो लोग बहुत कूल लगते हैं ना, आपको लगता है वाह देखो वो देखो फातिमा जा रही है, वो देखो फला बंदा जा रहा है, वो किसी सोसाइटी का मेंबर है, वो किसी क्लब का मेंबर है, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड एवरीवन गेट्स टू नो देम। तो सबको पता है कि ये कौन है। तो आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करो। तो उसी एक्सपीरियंस को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है हमारे कुछ फेलोज को, फातिमा, युस्रा एंड हसन को। ये डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटीज़ को लीड करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। हसन इज़ फ्रॉम हैपुर कैंपस एंड फातिमा एंड युस्रा दोनों जामशोरो कैंपस हैं। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप तुम तीनों ठीक हो गए बिल्कुल। और आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योर क्लब। अपने अपने क्लब को इंट्रोड्यूस करवा दो प्लीज़, स्टार्टिंग विद फातिमा। So, Walaikum Salam, sir. I hope you guys are doing good and amazing. I am Fatma Yusuf, a third year software engineering student from MU Jamshoro, as sir mentioned, and I am a Google Developer Student Club's GDSC lead at my campus from MU Jamshoro. So, that is what has made me become a part of this podcast and entitled and honored me to tell you the tales of Google DSC with you. So DSC Mehran UAT in itself gives exposure to students on all grounds. So basically, for the greater good of technology, it has welcomed its second, tenure of DSC Mute, starting from 2019 and then in 2020 for the students in STEMs. Assalamu alaikum, sir. Thank you. Firstly, thank you to have us on this school podcast. And I am Yusra Koso, a student of third year software department at the Mehran University of Engineering and Technology, and president of Software Engineering Society Mute. And I'm here to represent that society. It was established back in 2017, in which the main motive was exposure for students. Yes, sir. This is Mohammad Hassan, third year software engineering student at Mehran University, Faisal Farin Kutuk Miras. I'm a key part of this community. So I want to be active for every time for this to joining a lot of communities, a lot of friends, a lot of developers, a lot of the. I want to increase network myself. अच्छा गैस, तो एक चीज़ हम लोगों ने नोट की होगी कि पिछले 2-3 साल, 4-5 साल से हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम कर गई। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इवन हमारे टाइम की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में व्हाट्सएप वाज नॉट दैट कॉमन। लाइक 2015, 16, 17 तक व्हाट्सएप वाज नॉट दैट कॉमन इन यूनिवर्सिटीज़। सिर्फ उस एस्पेक्ट से अगर सिर्फ देखा जाए तो उसके बाद तो बहुत सारी और टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ चुकी हैं। और अब हम लोग जैसे देखते हैं तो स्टूडेंट्स और जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं इन सारी चीज़ों से। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी सोसाइटीज़ या तुम्हारे जो क्लब्स हैं वो इसमें कितने कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना इम्पैक्ट है उनका इन सारी चीज़ों में, या फिर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया की अवेयरनेस और इन सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा हैं? सो व्हाट डू यू थिंक कि तुम लोगों का क्या इम्पैक्ट है इस अवेयरनेस पर, इन सारी चीज़ों पर? जी फातिमा। So talking about the impact, the DSC has created a lot of things for the students, and not bragging this up, and it has a positive impact for in the society, in the campus, in the Hyderabad region in itself, and Jamshoro to beyond vicinity. So we have been connecting with different individuals from across Pakistan, not only Pakistan but globally. We have connections from Indonesia, from India, and many parts of the world. That's countless and limitless. So globally, we have been connecting with professionals and making our students and peers and even members of our society, of our club, connecting with such professionals on LinkedIn or elsewhere, on Facebook, on different platforms that are most commonly used among our Gen Z. So here's to them. It's like
improving our society through technology and most recent trends is the goal of DSC. So that is what we have been doing lately, and learning the new skills through our sessions and events at DSC Mute is giving them, the students, a chance to grow as an individual in their professional life, and building their networks and building solutions for the real world problems to present in DSC Solution Challenge. And we have been providing women opportunities from 29 हमारी औरतें जो जिनको टेक में इंटरेस्ट है वो आगे बढ़े through this platform, and that is what our goal is. And so we have been giving equal facilitation for the women and men, and without any gender discrimination in this club, and helping them build communication skills and developing confidence to present, to suggest the leads and even the team with what to do next. And we are the, you own your club, individuals own this club. So that is the impact of DSC on the society. Awesome, बहुत ज़बरदस्त। Yusra? So firstly, I second you, Fatma, for the discrimination of women. Back in 2014, मेरा जो cousin था, he was in IT department. So he used to say me कि choose करने से पहले सोच लेना कि it's a boring field, तुम उसमें कर पाओगी या नहीं, और cover up हो जाएगा। IT is a boring field. Exactly, that's what he was saying. तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, मुझे शुरू में हिरापी मिली थी, एंड शी वाज लाइक कि तुम न्यू बैच से हो और मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया। तो अब मैं रोज़ उनके स्टेटस देखती थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहाँ पे तो वो सोसाइटीज़ के इवेंट्स के स्टेटस, मतलब स्पैम हो रहा होता था ना मेरा पूरा व्हाट्सएप और फेसबुक। तो कि मुझे तो लगा था कि ये बोरिंग फील्ड होगी, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे इवेंट्स होते हैं। एंड देन आई केम टू नो अबाउट SCS। तो मुझे इतना था कि मैं SCS में आऊँ, और जब भी मैंने SCS का सुना था तो पहले तो मतलब मैंने हिरापी को देखा, फिर बाकी लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। तो आई केम टू नो कि मतलब हमारे बाकी डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट इज सो डिफरेंट। लाइक वी हैव अ कूल डिपार्टमेंट। DSC भी हमारे डिपार्टमेंट से ही शुरू हुआ था बाय हिरापी, और SCS भी वहाँ से ही शुरू हुआ था। 2 मेगा इवेंट्स होते हैं हमारे SCS के हमेशा, तो जो ओपन तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं वहाँ पे, और मुझे इतनी खुशी होती है देख के कि हाँ मतलब ना हमारे थ्रू लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में, उनको पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो लाइक कि अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वी कैन डू दैट। वो हम पे कि हम कैसे वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर दें अपना। तो फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और फातिमा ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि यू कैन डू दिस और वी कैन डू दिस टुगेदर। दिस इज व्हाट SCS हैव एन इम्पैक्ट दिस टाइम। अच्छा, तो मतलब जो इवेंट्स वगैरह तुम लोग करवा रहे हो और उसके थ्रू जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर कॉलिंग योर इम्पैक्ट एज। कि भाई देखो इस तरीके से ना हम लोग जो हमें आता है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड देन फातिमा वाले सेमिनार्स वगैरह करवा रहे हैं। तुम लोगों के SCS के 2 सिग्नेचर इवेंट्स हैं दैट यू टोल्ड कि हम लोग वो करवाते हैं, एंड दीज आर द इम्पैक्ट्स। इसी तरीके से कहना चाह रहे हो ना? एग्जैक्टली सर, एक्सपोजर स्कूल में बढ़ता है। वी हैव अरेंज एंड बैक ओरिएंटेशन हुई थी 21 बैच की, 20 बैच की। तो मैंने उनको ना गाइड किया था। तो दे वर लाइक कि यहाँ पे तो हमें लगा था कि हम आएंगे और क्लासेस में मतलब बिठा दिया जाएगा और वही हमारे पास ना प्रेजेंटेशंस खुलेंगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। युसरा ने जैसे मेंशन किया कि it is really hard for women to get accepted for the lead roles and president roles. Like लोग नहीं accept करते कि Fatima could do that, Yusra could do that. They believe like they're women. They actually don't. They can don't have that stamina to come over and show the world that we can actually lead. So also an international impact. An example of international impact was recently I had a talk with my cousin from California. She's in Silicon Valley, and she bumped like really into me yesterday, and she calls me from there, and she's like, Fatma,
you haven't been posting about DSC on your WhatsApp status. मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो या DSC से नाराज हो? And for an instant, I was like, wait, what? Literally, ये उठते से ही ये सवाल किया गया. And I'm like, yeah, we have been working on something, so उसके लिए so just preparing ourselves. And she's like, you have motivated me to join tech, and she's now in Silicon Valley. So I'm great. her. Yeah. So big shout out to her. So really, she motivates me every time. She sees my post on Facebook. She reacts to it. She comments it. She lets everyone in the community. मेरी cousin होकर मेरी सारी फैमिली को बताना कि she is the one जो मेरे side by side होती है टेक में, वो एक ही बंदी है, like me, let alone from entire the cast. मैं ही सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. तो she feels like someone has a support system, जैसे युसरा ने बात की कि होना चाहिए. So that is what the international, multinational impact है, like for clubs. Awesome. अच्छा, अब बात करते हैं हसन से. हसन का जो सीन है, ही इज़ फ्रॉम कैंपस, तो वहाँ पर एक्सपोजर का जो ना थोड़ा सा क्लब्स के हवाले से किस तरीके का एक्सपोजर क्रिएट किया गया है MLSA की तरफ से. लेट्स टॉक टू हिम. जी हसन. यस सर. पहले तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कि मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में जाऊंगा, और वो भी खैरपुर कैंपस में. तो डेट वाज अमेजिंग फॉर मी. सो उसके बाद जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया खैरपुर तो मुझे बहुत इधर उधर लग रहा था कि हम तो बहुत शिकायतें करते थे सर के चेयरमैन के साथ कि हम यहाँ तो इन्वायरमेंट, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता था, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई अच्छी की ऑर्गेनाइजेशन हो जो इवेंट करवा सके. जब मैं सेकंड सेमेस्टर में गया तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने थोड़ा नेटवर्क इंक्रीज किया. उसके बाद फर्स्ट मैंने गूगल आयो जो है ना अटेंड किया. उसके बाद गूगल डेव फेस्ट आया, उसके वो भी हमने अटेंड किया, वो भी जाके अटेंड किया. लेकिन डेट इज अ जर्नी ऑफ स्टार्टिंग जर्नी होती है, एक रास्ता होता है. उसके बाद हमने बैक आया और मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चिंग की. तो जस्ट सेकंड ईयर में गया तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम आया ना, जस्ट जैसे ही. तो हम चाह रहे थे कोई बड़ा क्लब लेके आए, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेके आए, कोई बड़ा जो है कुछ करके जाए. तो ठीक है, तो इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया. तो माइक्रोसॉफ्ट में मुझे ईमेल नहीं आ रही थी. ये एक मेरा एक दोस्त था समा मज़ीम AWS. तो उन्होंने कहा कि आपको ईमेल अगर नहीं आई ना तो आप जो है इन प्रोसेस में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी मे बी. तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो उस टाइम मैंने जैसे ही ईमेल चेक की तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी. डेट वाज अमेजिंग. तो मैं जैसे ही पाकिस्तान ग्रुप MLSA में आ गया तो मैडम नाजिया ने मुझे देख लिया था कि आप भी हो गए. मैंने कहा मैं भी हो गया. अभी आप भी हो गए जी, आप भी हो गए. तो मैडम ने बहुत सारे पब्लिश स्टार्ट कर दी. तो मैडम के साथ बहुत सारी मैडम जो है बहुत इंटरेक्ट हुए. और उसके बाद हमने मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था इन चीज़ों. ये मैंने अपना क्लब जो है बहुत सारे स्ट्रगल से डेवलप किया इसी माहौल में, खैरपुर माहौल में, जो किसी को पता भी नहीं था कि इवन माइक्रोसॉफ्ट है क्या. तो मुझे बहुत सारे SMS टेक्स्ट आते थे कि माइक्रोसॉफ्ट है क्या. तो मैं हर बंदे को ना मैं अपने कॉल या कि मैसेंजर पे जाके उसको बताता था कि माइक्रोसॉफ्ट है, ये चीज़ें. उसके बाद मैंने वो एक इंफॉर्मेशन से एक इवेंट करवाया था, एक 20 जैसे 20 बैच आई थी ना, तो उस हवाले से हमने बहुत सारा जो एक बड़ा इवेंट करवाया था. वो बहुत बड़ा इवेंट था. सेकेंड ईयर में जाके, सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग थी तो यूनिवर्सिटी ओपन थी, तभी कोविड का कोई सीन नहीं था. मेजर लीग हैकाथॉन, बहुत बड़ा हैकाथॉन करवाया था हमने. तो वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा हमारे लिए इम्पैक्टफुल था. जो हमने 5 और 4 स्पीकर्स हमने बुलाए थे बाहर से. अगर इसी तरीके से देखें तो हसन का जो MLSA के क्लब को कैंपस लेकर जाना, इट वाज एन इम्पैक्ट ही क्रिएटेड. कि देखो वहाँ पर उस टाइम पर कोई ऐसी क्लब या सोसाइटी नहीं थी जो इस तरीके के अवेयरनेस करवा सके, इस लेवल के इवेंट्स करवा सके, इस लेवल का एक्सपोजर दे सके. ठीक है, तो लाइक सिर्फ वहाँ पर उस चीज़ को लेकर जाना, लोगों को मैसेजेस करके, कॉल करके, आई नो इट्स नॉट इजी. हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, उसको कॉन्स्टेंटली देना, दैट्स एन इम्पैक्ट दैट वी क्रिएट. एंड एग्जैक्टली इसी किस्म की चीज़ें, और यही वो चीज़ है ना जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को. देखो
हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, इनिशियली हो सकता है कि वो इतना बड़ा ना लगे, बट अगेन जब आप उनके पर्सपेक्टिव से देखते हो कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पूरा सेट हुआ हुआ स्टेज है तो मेरे लिए आसानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फातिमा की बात करें तो लाइक डीएससी उनको एक पूरा सेट स्टेज मिला है एक लिहाज से, लेकिन उसको फिर आगे और ऊंचाइयों तक लेकर जाना इट्स एन डिफरेंट थिंग। लेकिन एक चीज़ अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सारी चीज़ें नहीं है एंड देन स्क्रैच से उसको चीज़ करना, तो उससे एक्सपेक्टेशंस आपकी डिफरेंट होंगी और जो आपका सेट स्टेज है उससे एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होंगी। लेकिन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि यार दे आर वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं दोनों चीज़ें। दिस इज समथिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट। लेकिन अब इसमें ना मैं थोड़ी सी चीज़ एक है कि फॉर एग्जांपल अगर इमेजिन करो कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन तक तो अवेयरनेस पहुँचती है, सेमिनार्स भी हम लोग अटेंड करते हैं, आई बीन स्पीकर इन वेरियस सेमिनार्स, हम लोगों के ही थे। तो ऑडियंस हम लोग जब देखते हैं तो हैदराबाद की ऑडियंस होती है, कराची की ऑडियंस होती है, इंडिया की मैंने ऑडियंस देखी है, पाकिस्तान की देखी है, बाहर की ऑडियंस देखी है। बट पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर साइड पे हम अभी तक मैसेज कन्वे नहीं करवा पा रहे। देयर आर एरियाज की जहाँ पर उसकी नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है उस अवेयरनेस की, लेकिन वहाँ तक हमारा मैसेज अभी तक नहीं जा रहा। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि तुम लोगों की कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस सेंस में? दूसरा हम इंटीरियर साइड में किस तरह, आई एम फ्रॉम नशहर ऑफ रोज, तो इट्स एन इंटीरियर ऑल्सो। वहाँ पे लोगों को बहुत कम पता है कि सॉफ्टवेयर फील्ड क्या होती है। वहाँ पे अभी 2 यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई हैं, एक सिंध और आई डोंट नो द नेम जो एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पे भी आईटी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी, दे वर लाइक कि यार तुम लोग को जो है वो इतना मतलब खुल के पढ़ते हो और इवेंट्स होते हैं, हम लोगों को तो इतना कुछ पता ही नहीं है, मतलब क्या हो रहा है बाहर और टेक कितना आगे जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग किस तरह करें। तो तब मैंने बात ये सोची थी कि अगर उनके पास सोसाइटी नहीं है तो वी कैन हेल्प देम ना, कि वो कुछ कर सकें। तो फिर मैंने उनको बोला था कि आप ऐसा करो कि आपके यूनिवर्सिटी से कोई भी 2 जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के मतलब मेरी सोसाइटी के इनवर्स बन जाओ। आप जो है वहाँ पे मैसेज कन्वे करो जो हम कर रहे हैं। तो मैंने awesome. ये फिर सोचा था कि इनवॉइस वाला जो है वो कुछ लाऊं इस तरह से। तो वहाँ पे फिर मुझे वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स मिले थे और IB सक्खर से मिले थे और सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं। तो इस तरह से फिर ना उनको भी पता लगे कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर मतलब ना दे आर द फ्यूचर, वो भी आगे आ सकते हैं। उनको हाँ सिर्फ एक बिल्कुल टिप चाहिए, जो मतलब एक रास्ता चाहिए जिससे वो चल सकें। तो बिल्कुल यही इसलिए बात। फिर इस तरह से ना ये मैंने कहा था कि उनको इस तरह बात पहुंचे कि उनके ही स्टूडेंट से उनको बात पहुंचे कि वो बोल रहे हैं तो हमें करना चाहिए। हाँ ये अच्छी बात है ना। देखो और अब हमारा फर्ज बनता है क्योंकि रिसोर्सेज हैं और अपनी कम्युनिटी जहाँ जहाँ अपने अगर आसपास के लोगों को देखें तो हम लोगों ने उनको बहुत अच्छे से सर्व किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको सर्व किया है और काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करना पड़ेगा ना। तो जी हसन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और कोई प्लान्स हैं इससे रिलेटेड आपके? ये सर बिल्कुल जिस तरह हम आपने जिस तरह हम हमारा जो क्लब किया है, जिस तरह हमारे पास कोई ऐसी थीम नहीं था। इंटीरियर साइड थे हम, खैरपुर साइड बहुत इंटीरियर साइड होता है ना, तो वो वहाँ पर भी किसी को पता नहीं होता ना इन चीज़ों का, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस का। अभी जो लोगों को अवेयरनेस आ गई है, हम उनको भी लेके चलें। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव यही था, पहले तो अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट करना। मैं तो अपने पहले डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरी डिपार्टमेंट को ऐड किया जाए। दूसरी डिपार्टमेंट को भी मैंने ऐड किया और बहुत सारे लोगों को मैंने जो जिनको पता भी नहीं था वो इंटरव्यू दे रहे थे ना मुझे, तो वो कह रहे थे कि व्हाट इज हमें MLA के बारे में पता नहीं ना, इवन जो आपका क्लब है। तो मैंने उनको बहुत वहाँ पर समझा के फिर मैंने उनको सिलेक्ट भी किया। मैंने कहा कि हमें प्रमोशन तो चाहिए, लेकिन हमें सपोर्ट भी चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से नो डाउट आप भी अप्लाई करें, आप भी आ जाएं।
आप पीजी डिपार्टमेंट से हैं तो नो डाउट, आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से नो डाउट आप आ जाएं और आप ये अप्लाई करें। तो मैं और आईबीए की साइड बात की जाए तो आईबीए भी हमारे घर में है, हम उनसे भी कोलैबोरेट करते हैं, वो भी आते हैं हमारे इवेंट्स में। ओके, ऑसम ऑसम। यस फातिमा, इंटरनेशनल तो बहुत काम किया, और थोड़ा सा लोकली। ओह यस सर। सर सो हम लोग जब बात करते हैं गूगल डीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, उसकी अपब्रिंगिंग हो जाए, लाइक एज एन इंडिविजुअल की होती है तो ऐसे सोसाइटी की भी होती है। अगर हम लोग देखें तो इंटीरियर साइड या हम लोगों ने जो कंसेप्ट रखा था, इट वाज के involve everyone, right? So involving everyone is a great task, right? So you have to bring out people from urban areas to rural areas, right? You have to keep everything in an aligned manner कि भाई सबको involve करना है, तो you have to do the similar task. So getting on that concept, we used the first mover advantage. Like what was the first mover advantage? वो तो एक business side पे होता है, एक startup side पे होता है। बिल्कुल। हम लोगों ने एज इन क्लब में भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम लोगों ने एज सोसाइटीज एंड क्लब्स विद इन मेहरान यूनिवर्सिटी हो जाए या डीएससी में पहले किसी ने भी नहीं किया था, लाइक फॉर 2019 इवन हिरापी वाले टेन्योर में। सो द कंसेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग two teams, the two internal teams, that is department representatives and volunteer interns. So the concept of bringing them from different areas, so like we didn't go on their specific geography, but we knew that they were like not obviously from Hyderabad all in all, right? So we knew they were like from rural areas. So now we have department representatives from Sakhar, from Dadu literally, and from Karjanshu residents. Yeah, so they're actually, they themselves have a potential to lead something. So I felt like एग्जैक्टली। yeah, so they should have a position, a role, because DSC lead is being selected by Google and by Googlers. That doesn't mean you don't have to let others lead as well. So let them lead their own areas, their own departments, their own people, their own circles. So I let them have a chance. We let them have a chance. So department representative ho jaye, ya volunteer interns ho jaye, their influence is like when they even comment like on our posts. So for some events, some of the genuine ones, they invite people, the other genuine ones, and who are really interested into a session, into an event which we are making it happen on DSC. So they invite them and they'll be like, oh, thank you so much for tagging me on this board. I'll be surely coming to this event and session. And that is the whole purpose of it. When we will talk about achievements and the first mover things that we did in clubs, we will be surely mentioning that. So it's like peer-to-peer learning. We are like bringing सही बात। bringing the whole community as a global community together, helping students, helping social and local problems to be resolved. Could it be, awareness? Could it be, solutions problem? And, so that they are like networking with each other. Could it be like department representative के through uplift करने की बात आ जाती है, या एक दूसरे को strengthen करने की बात आ जाती है कि भाई how should I do this to convince someone to come there. So that is what they have to choose. That's their tactic to use, right? And such that doing events and boot camps have bring us together. So we'd say like we have used all of the opportunities for first mover advantages, and we'd be surely mentioning them in achievements, inshallah. ओके, ऑसम। इधर मजे की बात क्या है कि तुम तीनों का जो तरीका था टू इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और वो जो इंटीरियर साइड जहाँ जो लोग कम अवेयर हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, दैट वाज डिफरेंट। लाइक तुम लाइक डीएससी ने इंटर्न्स को इन्वॉल्व किया, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट जियोग्राफी, और ताकि वो सारे के सारे एक जगह पर आ जाएं। फिर युसरा, शी टुक द एनवाई एम्बेसडर अप्रोच, हसन टुक डायरेक्ट अप्रोच। तो दिस इज गुड, ठीक है ना, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप सब अलग अलग रास्ता ले रहे हो, गोल इज वन, गोल एक ही है, और उस लिहाज से जो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं किया हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ एक्सेप्ट करने की है कि हाँ जितना होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो रहा। दैट आई थिंक यू गाइज एग्री विद, या नहीं? अच्छा सर, कंटिन्यूइंग दिस, मुझे मतलब जब मैंने इवेंट्स करवाना शुरू किए थे तो आई हैव अ टीम मेंबर ताबिश नहीं है उनका, वो दादू से हैं। तो उनके फ्रेंड्स जो हैं वो जी, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो खैरपुर में भी हैं। तो मुझे लाइक कि वहाँ पे जो है वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इन टेक।
लेकिन उनके पास ना इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई डोंट नो वो क्यों, लेकिन मैं जब भी इवेंट करवाती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्पॉन्स होता है वो खैरपुर से होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स होता है खैरपुर से। अभी मैंने फ्रीलांसिंग का बूट कैंप करवाया था, तो वहाँ पे विनर भी खैरपुर का ही था। जो विनर था ना वो खैरपुर का था, और मुझे मतलब ये था कि वहाँ पे शायद या तो फिर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही, एक्सपोजर नहीं है इतना वहाँ पे, तो उनको पता नहीं है, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन इवेंट सो मच। टेडेक्स में बहुत मैं ज़्यादा, क्यूरेटर बहुत थी। बहुत बहुत टेडेक्स में इंटरेस्ट मैं बहुत ज़्यादा क्यूरेटर है। थी, तो जी सर। जी जी तो जी। वहाँ पे भी मुझे ताबिश मैसेजेस करता था कि दे आर इंटरेस्टेड इन टेडेक्स टू, और उनको वहाँ पे भी आना है, उनको इवेंट्स में आना है। और हम एचसीएस जो है वो जब फिजिकल इवेंट्स, जब मतलब सिचुएशन सही थी पहले कोविड के, तो वहाँ पे भी हम यही करते थे कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पीआर ड्राइव करते थे। नवाबशाह की एक यूनिवर्सिटी है क्विज, हम्म। हम वहाँ पे गए थे पीआर ड्राइव के लिए, और अ, मतलब हैदराबाद की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इवन हम सीएड में भी गए थे कि शायद वहाँ से भी कुछ ऐसे लोग हों जो इंटरेस्टेड हों। तो इस तरह से ना हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ, हम अगर लीड हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं और आपके लिए ही वो कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, इट्स काइंड ऑफ हार्ड कि हम वो किस तरह करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो बोलता है कि हाँ बोरिंग से सेशंस होंगे ऑब्वियसली, और हमें 2 घंटे बैठ के फ़ोन पे सुनना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यूट्यूब पे क्यों ना देखें। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब उनको हो कि हाँ हमें इस चीज़ को मतलब इन्वॉल्व करना चाहिए खुद को इस चीज़ में। लेकिन कोविड स्कूल ना, कोविड ने एक फ़ायदा दे दिया, वरना आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा बूट कैंप्स, इतने ज़्यादा सेशंस और इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती। लाइक आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी जल्दी फिजिकल इवेंट्स पॉसिबल होते हैं। और कोविड ने पूरा का पूरा रास्ता खोल दिया। जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, जो नेटवर्क करना चाहते हैं, अब हमें पता पड़ गया अगर फेसबुक पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, एक मैसेज करना है, यार देखो तुम्हारी एक्सपर्टीज डेटा साइंस के अंदर है, 1 घंटे के लिए मेरे पास आ जाओ, 1 घंटे के लिए मेरे पास बच्चे हैं, उनको लेक्चर दे दो। लाइक ये चीज़ें हम हमारे जहन में गुमान में भी नहीं थी कि इस तरीके से भी हो सकता है। और अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो हर वीक एक सेशन रखवा सकते हैं। एक जूम कॉल ही तो करनी है, टीम मीटिंग रखनी है, एक फॉर्म दे देना है, एक बंदे को कांटेक्ट कर लेना है, वो बंदा आएगा और बात करेगा, लोग आएंगे पूछेंगे, काम हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें, कोविड ने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दी हैं। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि लगता है कि यार हाँ ऑनलाइन सेशन लेना इज़ अ हेडेक, लेकिन जो नर्ड्स और टेकीज है ना, जिनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, नहीं इट्स बेटर, फिजिकल से बेटर है कि घर पे बैठा हूँ, एसी चल रहा है, सुकून से सो के सेशन लूँगा, एंड देन सीख भी लूँगा, एंड देन उससे जब चाहूँ देख भी सकता हूँ, जो चीज़ें चाहूँ फिर सवाल भी कर सकता हूँ। तो लाइक अपने फ़ायदे हैं दोनों के, फिजिकल और उसके। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी टू एक्सेस हो गया है अब, राइट? तो Yes, sir. सर कल जी जो जी है जी। मेरा इवेंट था कंप्यूटर नेटवर्किंग का, तो हम्म, वो मतलब ना जो सेशन था वो 2 घंटे से, अब मैंने उसकी टाइमिंग रखी थी 2 घंटे और उससे ज़्यादा जा रहा था। लाइक कि अब लोग बस कर दें। एक स्टूडेंट था, उसने शुरू से लेकर एंड तक पूरा सेशन सुना है, और इतने क्वेश्चंस किए उस बंदे ने। वो लाइक उसको तो मतलब मेरा सामान ही नहीं होगा, इतना वो या आई हैड क्वेश्चन किए जा रहे लाइक वाओ, मतलब फ्री। या फातिमा, याद है सलमान, वी हैड अ गाय इन आवर मशीन लर्निंग सेशंस। मशीन लर्निंग हमारा बूट कैंप था, एंड देयर वाज अ गाय नेम सलमान। वो अमेजिंग बंदा है, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड है, एंड ही इज अ रियली ग्रेट गाय, बहुत ज़बरदस्त बंदा है। तो उसका एक वो सवाल बहुत पूछता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना ये ऐसे बंदे। तो सोचते नहीं है, वो पूछता है कंटिन्यूसली, पूछता रहेगा पूरे सेशन में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने सबको मिलाकर भी उतने सवाल नहीं होंगे जितने सलमान ने सवाल पूछे थे। लाइक बहुत मजे वाली चीज थी ये। यस सर, सलमान की मैंने आपकी ही पोस्ट पर इतने कमेंट्स देखे, सर हमें भी पढ़ा लें, ये भी कर लें। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, लाइक ही इज नाउ योर नंबर वन फैन, एंड आई एम लाइक हमारे से ज्यादा सर की इससे मुलाकात हो गई है, अब इसकी बातचीत हो गई है। अभी हमारे न्यू ओसीज आए हैं, मतलब मेंबर्स। पहले ईबीज देन एसीज, अब ओसीज हमने ऐड किए हैं। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो होस्टिंग में बहुत अच्छे थे। कल जो हमारी होस्ट थी गुलविश, उन्होंने मुझे बोला कि आप ही दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, हम मानते हैं, लेकिन ना आप ऐसा करें कि आप जो है होस्ट को भी सर्टिफिकेट दिया करें, ताकि हम जो है अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करें और हमें मतलब लोगों को पता चले कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। या तो दिस लाइक इज कि हाँ बहुत
या दिस इज कूल कि मतलब पता पड़े कि इसकी कंट्रीब्यूशन थी क्या, एग्जैक्टली व्हाट शी डिड और ही डिड, कि भाई इस बंदे ने होस्ट किया, अच्छा इस बंदे ने कम्पीट किया, अच्छा इस बंदे ने ये किया ना, तो जब वो पोस्ट करेगा तो लोगों को एक रेलेवेंट चीज़ मिल जाएगी, अच्छा ये बंदा होस्ट अच्छा करता है, ठीक है। मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने देखा कि अच्छा ये होस्ट करता है, तो आई आस्क्ड कि अच्छा मैं एक इवेंट करवा रहा हूँ एंड कम होस्ट दैट इवेंट, मेरे लिए वो इवेंट होस्ट कर दो। उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। सर एक सोसाइटीज़ में ना एक चीज़ होती थी, एक इशू शुरू से मैंने नोट किया है कि एक सर्किल होता है ना, एक दोस्तों का ग्रुप होता है, वो नॉर्मली सोसाइटी का पार्ट होता है ना, तो एक नया बंदा, एक ऐसा बंदा जो सर्किल से बिलोंग नहीं करता, तो उसको मतलब सोसाइटीज़ का नॉर्मली एक शेल टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब उस शेल को तोड़ना किसी नए बंदे के लिए, उसमें इन होना और फिर अपनी जगह बनाना, और सिर्फ जगह नहीं बनाना, देखो अगर बंदा करता है, डिजर्व करता है, तो वो लीड भी कर सकता है सोसाइटी को, और उसे चांस बिल्कुल 100% चांस उसे मिलना चाहिए। तो ये मैंने बहुत कम देखा है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हर एक बंदे को जो सोसाइटीज़ के अंदर इन होना, लाइक जो शेल का स्ट्रक्चर है, फेवरेटिज्म कह लें उससे, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोस्त हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को अपॉर्चुनिटी दे दूँगा, यार आ जा, तू आ जा सोसाइटी में, मैं क्लब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा, और उसे मैं कोई अच्छी पोजीशन भी दे दूंगा। डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने उसे कर दिया, डायरेक्ट सोशल मीडिया कर दिया, मैंने कहा यार पोस्ट आएगी तो सिर्फ पोस्ट कर दियो। तो लाइक इस किस्म से मैंने एक कोई भी ऐसा बंदा जिसकी मैंने कॉम्पिटेंसी चेक नहीं की, फेवरेटिज्म के बेसिस पर ये रख दिया। अब एक ऐसा बंदा है जो पहले फर्स्ट ईयर का बंदा है, वो आना चाहता है, लेकिन अब वो आ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि एक तो वो देख रहा है कि भाई जो मेरे सीनियर्स हैं जो हैं वो तो बहुत कूल बंदे हैं, और मुझे नहीं पता, और इनके सारे आपस में दोस्त हैं, सारे आपस में बैठे होते हैं, अब मैं जाऊँगा कैसे, मैं कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करूँ, और मैं कैसे सोसाइटी के अंदर आ जाऊँ, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा इशू है। फेवरेटिज्म तो एक है ही है, उससे रिलेटेड ये भी है कि डर भी है। तो लाइक तुम लोग क्या कर रहे हो, तो व्हाट यू पीपल आर डूइंग इन दिस रिगार्ड? सर आपने जैसे बोला कि जूनियर्स जो है वो इन नहीं होते, तो मेरी टीम में, ईबी टीम में एक जूनियर है 19 बैच की, वो जिस तरह आई वो ट्रेजरर बनी। तो बाकी जो लोग थे दे वर लाइक कि तुम लोगों ने ना इतनी छोटी बच्ची को क्यों ऐड किया है, वो अभी न्यू आई है, उसको क्या पता एंड ऑल। मैंने सुनी थी ये बातें, लेकिन मुझे एससीएस की ये बात पसंद आई थी कि उन्होंने इस दफ़ा 19 बैच को बहुत ऐड किया है एससीएस में। जो रमशा है हमारी ट्रेजरर, वो इतना अच्छा काम करती है, मतलब उसकी काम में कभी कोई गलती नहीं हुई, लाइक किसी चीज़ में उसने अभी तक कोई गलती नहीं की। और मैं सोचती हूँ कि अच्छा है कि उसको ही आगे लाया गया है, और हमारे किसी बैच से या किसी सीनियर को नहीं लाया गया, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ बहुत ज़बरदस्त। जी हसन, आप क्या कर रहे हो नौजवानों को आगे लाने के लिए? सर मेरी स्ट्रेटेजी तो यही होती है कि मैं काफ़ी जो इंटरेक्ट करता हूँ ना वो जूनियर्स के साथ ही करता हूँ। मैं जो जाता हूँ ना काफ़ी जूनियर्स के पास जाता हूँ, जो भी मैं इवेंट करवाता हूँ तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर इवेंट दे देता हूँ, या उनको कह देता हूँ कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, या जो भी हैं और लोग जो भी उनके गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं उनको मैं टास्क दे देता हूँ कि आप ये जाएँ, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर को दे दें, अगर किसी को क्वेश्चन है या उसको आने चाहता है तो आप आ जाएँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट जूनियर्स के साथ करता हूँ क्योंकि उनको डर ना हो कि मैं काफ़ी जो है ना जूनियर्स के साथ ज़्यादा हूँ, क्योंकि जूनियर्स हमारे आउटपुट ज़्यादा देंगे। जूनियर्स जो है अब आएँगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आएँगे ना। ये चीज़ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल मैं ज़्यादा जूनियर्स को एक्ट करता हूँ, उनको लेके आता हूँ टेक्नोलॉजीज़ में, इवेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी जो भी मैंने टीम सेलेक्ट की है एमएलएस की, या जो भी मैं बाद में टीम सेलेक्ट करता हूँ, या अभी मैंने आइडिया गेस की एक टीम सेलेक्ट की थी, वो सारी की सारी जो है ना 19 बैच की है तकरीबन। आई वुड लाइक टू सपोर्ट मोर एंड मोर। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। असल में यही चीज़ चाहिए ना कि आप अगर आप कूल होते हो ना, आप बैठे हो, आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो डरते नहीं हो आपसे, लेकिन उनको पता है कि हाँ ये कूल बंदा है, चिल है, बात कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, आगे बोल सकता हूँ यार मुझे सीएस में आना है, कैसे आना है, मुझे डीएससी में आना है, कैसे आना है, एमएलएससी में आना है, कैसे आना है, बताओ, और उसमें मेरी हेल्प कर दो। अच्छा फॉर्म में मेरी हेल्प कर दो, फॉर्म के बाद ये सीन है, अब बता दो क्या होगा आगे। ठीक है, हेल्प के लिए आ रहा है, अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छी है कि ठीक है आपकी, एक तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इससे, और ऑब्वियसली यही होना चाहिए आगे। फातिमा, एनी थॉट्स?
यस सर सो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग GDSC में हम कैसे शेल कल्चर को ओवर पावर करते हैं, लाइक सिंस वो हमें कर सकता है तो लाइक फॉर द कंसेप्ट एक्चुअली सो दिस इज देखिए रनिंग बहुत पुरानी चीज। Yeah, exactly. So since you mentioned कि हम लोग juniors को नहीं लाते and then seniors को लाते हैं, so one thing that I was told from the very start, it was कि जितना वही बात जो हसन ने कही कि if juniors will give you more output than seniors. Why? यस Because seniors actually have gone through the same thing. They don't want to repeat it again because they wouldn't give their 100% to it. But juniors जिनको आप newly introduce करवाओ किसी culture से, किसी society से, किसी club से, they're more than interested. दे And आर that पैशनेट अबाउट इट। yeah, and that is the point जो होती है ना, जो attraction point होती है ना, तो वहाँ से शुरू होती है। So इसीलिए हम लोगों ने PR ड्राइव्स की, इसीलिए हर सोसाइटी, हर क्लब जो है वो PR ड्राइव्स करती है ताकि सब अच्छा। नंबर 2 थिंग कि हम लोगों ने जूनियर्स की इन्वॉल्वमेंट तो शुरू, क्योंकि हम तो खुद ही जूनियर्स हैं ना, 18 बैच से होना सिलेक्टेड एंड देन गेटिंग टू इनटू क्लब्स एंड रनिंग क्लब्स, लीडिंग क्लब्स विद द कोर टीम। सो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का हम लोगों ने मेंशन किया। अब डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव में भी हम लोगों ने ग्रुप वाइज एक सिलेक्शन बना दी कि वी विल बी चूजिंग 18 एंड 19 के बैच के स्टूडेंट्स, सिंस 20 अभी आया नहीं था। सो हमारा टारगेट था कि हम लोग 19 और 18 हर डिपार्टमेंट से 18 19 के स्टूडेंट्स होंगे। So we did this in department representative later on in volunteer interns as well, and then we introduced DSC in the 2020 batch, and then we actually went through classes in like software and CS department में। लेकिन जो हमें response मिला, alhamdulillah, I'm not flexing here, but ओवरवेलमिंग। yeah, overwhelming response था, and everyone was kept asking, kept knocking on me कि फातिमा, like I want to be in there, सारे groups बन जाना, and then discussion हो रही थी, open discussions। तो उसमें समीउल्लाह भी थे, निमरा भी थी, और हमारे पास डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंसिया फातिमा, उनको भी हम लोग लेके गए थे PR ड्राइव के। अच्छा एक चीज़ जो मैंने एक और चीज़ जो हम लोग सोसाइटीज़ में देखते हैं वो डाइवर्सिटी बहुत कम देखते हैं। डाइवर्स मतलब अगर वो किसी भी लिहाज से देख लें, लैंग्वेज के हिसाब से देख लें, वो जेंडर के हिसाब से देख लें, तो इतने डाइवर्स क्लब्स और सोसाइटीज़ लाइक पहले कम होते थे। आई डोंट नो कि अब सीन व्हाट इज द सीन और तुम लोग इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, लेकिन व्हाट यू पीपल आर डूइंग लाइक हाँ अब 50-50 हो जाए हर चीज़, लाइक किसी भी लिहाज से, जेंडर के हिसाब से सोच लें, लैंग्वेज के हिसाब से सोच लें, किसी भी हिसाब से, तो लाइक वी विल बी मेकिंग आवर क्लब एज डाइवर्स एज पॉसिबल। लाइक अगर मेरे पास कोई फॉरेनर हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है एंड ही इज़ इनटू आवर क्लब, तो लाइक हम लोग उसे लेंगे, आ जाओ बहुत ज़बरदस्त, आ जाओ हम साथ इवेंट करते हैं। लाइक तुम अपनी कंट्री जो तुम्हारे वहाँ पे दोस्त हैं उनको भी इनवाइट्स भेजो, वो भी आ जाएं, लाइक अटेंड करें हमारा सेशन। तो लाइक व्हाट यू पीपल आर डूइंग इन दिस रिगार्ड, क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई चीज़ है, कोई प्लान्स हैं? आई रिमेंबर जब SCS के फॉर्म्स आए थे तो मैं पहले प्रेसिडेंट पीरियड जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ना एक माइंड में था कि हमेशा से प्रेसिडेंट जो है वो मेल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मैं मतलब ना मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सिलेक्ट मतलब मैं सिलेक्ट तो कर लेती हूँ, चलो हुआ ना हुआ वो मतलब मुझ पे है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या है। तो फिर जब मैंने मतलब उसको क्लिक किया था, मुझे मैसेज आए थे कि आपके इस दिन इंटरव्यू होंगे। तो पहला इंटरव्यू मतलब मेरे सारे इंटरव्यू टीचर्स ने ही लिए हैं जो हमारे टीचर्स थे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के। तो पहला इंटरव्यू मैम हिरा ने मेरा कंडक्ट किया था और उसके साथ जो है वो टीम भी थी। तो मैम मतलब कि मैंने आप अच्छा तो आप हो युस्रा ये वो, तो मतलब कि हाँ मैम मुझे जानती तक नहीं है, मैं कैसे सिलेक्ट होंगी, नहीं हो सकती मैम। तो मेरा पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था। मैम ने मतलब मुझे इतने सारे सिनेरियोज दिए थे और मतलब मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी कि पता नहीं मैंने आंसर्स दिए हैं जो वो मैंने सही दिए हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त जो भी था मेरे दिल में था, जो मेरे मुंह में था वो मैंने बोल दिया था। पूरा 1 घंटा मैंने बोला था। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे फिर से मैसेज आया कि आपका फिर से इंटरव्यू होगा, और वो मेरा दिया था सर जुबैर ने। वो भी मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था, पूरा 1 घंटे का। तो माय मॉम वाज लाइक कि क्या है तुम इतना इतना ज़्यादा बोलती हो, इतना ज़्यादा करती हो, तुम्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं। ऐसे कि मैं इतना कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे खुद पे इतना तो बिलीव है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। देन एट द एंड हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे और मुझे उस वक्त इतना डर था कि मैंने इतनी मेहनत की है,
मतलब ना पता नहीं मैं होंगी या नहीं, पता नहीं फिर ये लोग सोचेंगे कि ये लड़की है इतना कर पाएगी, लोगों से बात कर पाएगी या नहीं। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था 3 टीचर्स थे, सर चेयरमैन थे, सर मौसम थे, मैम हिरा थी। और फिर जब मैंने उनको इंटरव्यू दिया था दे वर सो हैप्पी, और मुझे इतना मतलब सपोर्टिव वो इतने थे ज़्यादा, सर मौसम वाले सब। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि टीचर्स आर सो सपोर्टिव कि वो मतलब ये नहीं देख रहे कि किस तरह का बंदा है या हम उनको जानते हैं या नहीं, तो दे सिलेक्टेड मी। दूसरा कि हम कोलाबरेट भी बहुत करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से। अभी हमने जो है वो GCU लाहौर की यूनिवर्सिटी है, उसका भी ACM चैप्टर है, उससे हमने अभी रिसेंटली कोलाबरेट किया है। उनका कोई फेस्टिवल हो रहा है जो मेगा इवेंट है उनका। तो इस तरह से ना मेरे वहाँ से भी कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी की बात करें ना, तो हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो जो इंटर डिपार्टमेंटल वो जो होती है ना कोलैबोरेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, कि ठीक है भाई हम लोग को ऐसा इवेंट करवा रहे हैं कि जैसे लेटेक्स का इवेंट है। अब लेटेक्स का इवेंट पूरी यूनिवर्सिटी वालों के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि थीसिस के लिए काम आता है, रिसर्च पेपर्स के लिए काम आता है। इवन लाइक जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लेटेक्स का जो सेमिनार होगा वो यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। तो अब इस सेंस में यहाँ पे जो बात आ जाती है कि अब इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, क्या वो भी हो रहा है या उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? जैसे मैंने अभी इनवॉइस का मेंशन किया था, तो इनवॉइस जो है वो अभी दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, मतलब एक डिपार्टमेंट तक नहीं है, वो बायोमेडिकल की स्टूडेंट्स हैं और केमिकल डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स हैं, CS डिपार्टमेंट के हैं। और जैसे फातिमा ने भी बात की थी कि उन्होंने ना डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे हर अलग डिपार्टमेंट से, तो इसी तरह भी इनवॉइस भी इसी तरह है। तो हम इस तरह नहीं काम करते कि आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप सारे डिपार्टमेंट पे काम करते हैं हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। बहुत ज़बरदस्त। नहीं, दैट्स व्हाट आई वांट कि ना इंटर डिपार्टमेंटल, जैसे हसन ने ऑलरेडी इस बात बताया हुआ है कि इसने जो MLSA की टीम है या इनके जो क्लब्स की टीम है, तो वो पूरे कैंपस है, उस एक डिपार्टमेंट की टीम नहीं है। राइट हसन? Sure, sir. Sure. हाँ, देखो तो इसी तरीके से इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कोलैबोरेशन का, इंटर डिपार्टमेंटल। फातिमा लोग एम्बेसडर, तो अच्छी बात है कि इस तरीके से तुम लोग एनवॉयज रख रहे हो, एम्बेसडर्स रख रहे हो। अच्छा, तुम लोगों के पास जेंडर गैप किस तरीके से है कि लाइक 50-50 अभी तक हो गया है या लाइक दैट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, या 50-50 का सीन ही नहीं है? No, it's 50-50 for sure. We are 50-50 doing. 50-50 है सबके पास? जी सर, 50-50 रेशियोज आर इक्वल। ओके, लेकिन मेन चीज़ कॉम्पिटेंस है ना। लाइक अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेम पोजीशन, लाइक एक लड़की भी है एक लड़का भी है, तो लाइक ऑब्वियसली यू वुड चूज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि तुम लोगों को क्लब चलाना है, तुम लोगों को सोसाइटी चलानी है, तुम लोगों को चीज़ों को परफेक्टली करना है। लाइक कॉम्पिटेंस इज द की, बट थिंग इज के वी आर गेटिंग इक्वली कॉम्पिटेंट पीपल फ्रॉम बोथ जेंडर्स, तो लाइक दिस इज रियली ऑसम। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों के पास एक असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे होंगे और इवेंट भी आ जाए, तो बताओ आप क्या करोगे? लाइक एकेडमिक्स और सोसाइटीज और क्लब्स को कैसे हैंडल कर रहे हो? Sir, so I think I should take a lead here for the fact that, okay, so here's a plus point for me and for the people who would be watching this podcast. Okay, I am a 3.9 plus GPA holder, and Oh my God. yeah, exactly. I have been reaching like I have been going up on like 3.96, 97, and even went 4 GPA too. So to me, like being a lead, I have been given a mindset, a growth mindset from Tech Karo, where I started this web development course, and I started to realize that management of academics things as well as co-curricular activities and other extracurricular activities are really must. So how it started was like I took a leadership role there, and I actually led a team of 10 members, and I realized कि वहाँ पर time management कैसे करना होता है. तो मेरे पापा ने मुझे growth mindset वाला एक टारगेट बना दिया है कि फातिमा, you don't have to focus on your 4 GPAs only, let alone you have to go abroad. तो abroad में ये 4 GPA एक GPA काउंट होगी, लेकिन तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तुम्हारी क्लब्स में तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटीज, तुम्हारे जैसे गिटअप पे कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो इसी तरीके से you contribute for a project. तो इसी तरीके से in real life you contribute to a community, you serve your people. तो
वो चीज़ें सारी एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड में आपको बहुत मैटर करती है। सो एक चीज़ मैंने बहुत लोगों को बहुत दफ़ा कही है कि मैं अभी अगर 3.9 प्लस GPA लेके बैठ जाती, 4 GPA लेके बैठ जाती, तो मुझे कोई नहीं जानता था। आई वॉज नो वन, लिटरली नो वन। फातिमा यूसुफ who had 3.9 plus GPA, कोई नहीं जानता था मुझे यूनिवर्सिटी I में, said it लिटरली। to so many people. या एग्जैक्टली। सो लाइक मेरे सिर्फ डिपार्टमेंट तक जानते थे, या इवन पॉइंट में जो कम्यूट होता था वो वहाँ पर ट्रांसलेट में जो फ्रेंड्स बनते थे, दैट्स इट। मुझे कोई और नहीं जानता था। लाइक व्हेन आई गॉट इनटू DSC, एवरीवन लाइक kept pointing on me, pointing fingers like positive में, मैंने में कि भाई हाँ ये फातिमा है। Now they know me for the work I do for DSC, for the servings I do in DSC, not for the GPA। ये वो 4 GPA होल्डर वाली बंदी नहीं है। ये मुझे कोई कभी कहीं नहीं कह नहीं सकता, अदर देन डिपार्टमेंट वाले लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरी GPA को जानते हैं, मेरे रोल नंबर को जानते हैं। मेरा रोल नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा आगे आगे मेरा नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी कोलैबोरेशंस, मेरी कम्युनिटी में सर्विंग्स रिप्रेजेंट कर रही है। So Yes, it exactly. started from Tech Karo. A huge shout out to their team. यही चीज़ लाइक इट्स गुड कि आप एकेडमिक्स और उसके साथ लेके चल रहे हो, यू आर टेलिंग कि भाई दिस इज दिस, एवरीथिंग मैटर्स ऑल टुगेदर। एक चीज़ कभी भी मैटर नहीं करती, व्हेन यू पुट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट और सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हो, तो देन थिंग्स स्टार्ट टू मेक सेंस। इस तरीके से ज़्यादा कर रहा होता है। हसन, आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने एकेडमिक्स और सोशल लाइफ को? I would like to prefer social strategies and social activities. I want to do. It's a choice, but Yeah, everyone has own strategy, but if you're talking about so technical side, I want to contribute in Delhi. I want to contribute on GitHub, and Delhi. I have 20 more or 22 contributions on my profile. तो एकेडमिक की साइड की आप बात की जाए तो मैं उनको सप्ली तो मुझे मैं तो नहीं चाहूंगा कि मुझे सप्ली लगे या ऐसी कुछ 3.0 के, बट क्या थिंग इज फाइंडिंग अ बैलेंस। या फाइंडिंग अ बैलेंस, मैं बैलेंस रख सकता हूँ कि आप 3. के हाँ ये तो जब एग्जाम्स आते हैं ना तो मैं प्रेफर करता हूँ बिल्कुल एग्जाम्स को, क्योंकि मुझे GPA को भी मेंटेन करनी है। बट हाँ तो ठीक है ना, देखो हर किसी का बैलेंस डिफरेंट होता है। फातिमा हैज फाइंड अ बैलेंस बिटवीन लाइक टॉप GPA एंड कम्युनिकेशन, बीइंग सोशल लाइफ, सारी चीज़ों का बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। हसन हैज फाउंड आउट द बैलेंस हाउ आई कैन प्रायोरिटाइज माय सोशल लाइफ एंड कीपिंग माय स्टडी इन चेक। एवरीथिंग ऐसे नहीं कि मैं स्टडी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे लग रहा है मेरी सारी काम की चीज़ें, मेरे को असाइनमेंट नहीं रह रहा, मेरा कोई टेस्ट नहीं रह रहा, आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग मेजर, बट लाइक थोड़ी प्रायोरिटी सोशल लाइफ को मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ अगेन, तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। व्हाट अबाउट यू इसरा? अच्छा, मुझे कुछ टाइम पहले ही प्रेसिडेंट बनने से पहले मुझे एक दफ़ा मैं बैठी थी ऐसे ही, मैं फालतू बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मेरे बाबा जो है मेरे रूम में आए थे, उसने कि इसका क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। नहीं कि तुम्हें पता है कि जो बंदा जिसके पास मतलब हाथ है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, टैलेंट दिया है, और वो इस तरह से फालतू बैठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मतलब वो फालतू क्यों बैठा जब उसके पास इतना कुछ है अंदर में और इसके पास इतना टैलेंट है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह फालतू बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी फालतू बैठे नहीं देखा। क्योंकि पहले मुझे मतलब सॉफ्टवेयर से पहले मुझे पेंटिंग का बहुत शौक होता था, तो मैं हर वक्त वो करती रहती थी। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर में आई तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगे। तो जब मैंने वो चीज़ें देखी मुझे इंटरेस्ट बढ़ा और मैं बोरिंग लाइफ से थोड़ा मतलब ना खुली लाइफ में आई, तो मुझे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एकेडमिक्स को सारा दिन नहीं दे सकते, मतलब आप सारा दिन बैठ के पढ़ रहे हो फॉर 4 GPA, इट्स नॉट फेयर। आप उसके साथ देखो कि आप क्या क्या और भी कर सकते हो। और मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया था जब मैंने वेबिनार्स अटेंड किए थे। लेकिन जब मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, मैं सोशल बनी, तब मुझे पता लगा कि आगे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। और फिर मुझे इन चीज़ों मतलब ये जो चीज़ें थी इन्होंने भी बहुत मुझे असाइनमेंट्स में, मेरे एग्जाम्स में उनको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ऑसम। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है कि तुम आपने उन्हीं सारी चीज़ों से
जो लोगों को लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं, व्हाट यू टुक इज लाइक उसको जो टूल ले लिया कि नहीं अब देखो लोग सब देखने वाले हैं मुझे, अब सबको नाम याद होने वाला है, अगर किसी को लगा कि मैं फेल हो गई हूँ तो लाइक इट वुड बी ह्यूज एम्बैरेसमेंट। तो लाइक अब नहीं, फेल नहीं हो सकते, अब बुरा नहीं परफॉर्म कर सकते, वरना लोगों को लगेगा कि नहीं अगर मैं बुरा बिकॉज इसलिए परफॉर्म कर रही हूँ कि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू बैलेंस एवरीथिंग आउट। अच्छा, एक जो मतलब लाइक वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड, तो एक चीज़ जो हाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास अभी के सिस्टम में, दैट इज स्टार्टअप कल्चर। बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम, इकोनॉमी के लिए भी, हम लोगों के लिए एज ए इंडिविजुअल फॉर द रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टार्टअप कल्चर ना। तो अभी हम लोग क्या करें ऐसा कि मतलब तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो जिससे स्टार्टअप कल्चर को तुम लोग बूस्ट दिला रहे हो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर? क्या तुम लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो किसी स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, या अब कम्युनिटी के अंदर ही तुम लोगों के पास स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं? लाइक व्हाट यू पीपल आर डूइंग इन दिस रिगार्ड कि किस तरीके से हम लोग स्टार्टअप कल्चर को ना बहुत ज़्यादा कॉमन कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? Okay, so let me take the lead if anyone wants. Okay. So actually startup culture हम लोग अगर हम startup की initial definition से ही जाए तो एक idea को present करके implementation की तरफ लेके जाना, for the simplest of definitions, right? तो हम लोग BSc में क्या encourage करते हैं कि if someone has an idea, just do something. तो हम लोग उनको उनके आइडिया को उसके रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ओ यू हैव दिस आइडिया, सो यू वांट अस टू इम्प्लीमेंट दैट, वी डू दैट, वी शोरली डू दैट। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियाज़ तो हम लोगों के पास सोल्यूशन चैलेंज होता है। सोल्यूशन चैलेंज में हम लोग क्या करते हैं कि सब आइडियाज़ लेके आते हैं, ठीक है, सबसे लिए जाते हैं इनपुट कि क्या होना चाहिए, कौन सा आइडिया ऐसा है जो स्केलिंग आइडिया है, जो पाकिस्तान लेवल पर है या कम्युनिटी लेवल पर है या लोकल है या ग्लोबल है, कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। So we try to involve everyone जो आइडियाज दें, सबके डिफरेंट आइडियाज होंगे, सबने सोसाइटी को अपने एंगल से देखा होगा ऑब्वियसली। सो इसीलिए हम लोग उनके आइडियाज़ को वेलकम करते हैं। और ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन तो एक ही आइडिया क्यों होनी है, क्योंकि एक टीम होती है डेवलपमेंट की जो बस उस पर काम करे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बंदे इस वॉलंटियर काम के लिए कम ही आते, लेकिन रेयरली आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो उनकी डेवलपमेंट टीम में उनकी इम्प्लीमेंट होती है आइडिया की। अब हम जब बात करते हैं ये सारी तो क्लब की पीयर्स की हो गई। अब हमने जो एज एन इनिशिएटिव लिया था DSC में, GDSC म्यूट में जामशोरो में रिसेंटली, NIC जामशोरो के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इसकी बूस्टिंग के लिए बहुत सारा कुछ किया। How did we do it? We contacted Sir Qasim, and then we recorded a podcast, and then he was like, why not to bring DSC for the cause of promoting and introducing NIC Jamshoro। सबके concept clear करने के लिए हम लोगों ने अपने platforms use किए। Could it be YouTube? हम लोगों ने YouTube, हम लोगों ने Facebook, हम लोगों ने सारी जगह पर प्रमोशंस की ताकि उन लोगों तक पहुंचा सके द मैसेज ऑफ NIC जामशोरो। यार देखो हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म है ना, वी ओ इट टू पीपल, अब फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाना। यस यूसरा, कि तुम लोग भी कोई स्टार्टअप वगैरह इंक्यूबेट कर रहे हो या क्या प्लान्स है? यस सर, बैक प्रीवियस SCS हमारा एक जो इवेंट हुआ था टेक करीना, उसमें एक इनिशिएटिव हुआ था टेक आइडिया का कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस से लोग आए थे और वो उनके आइडियाज़ सुनने आए थे कि किस तरह के उनके पास लोगों मतलब स्टूडेंट्स के पास आइडियाज़ हैं फॉर प्रोजेक्ट एंड ऑल। मेरी जो सोसाइटी है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम नहीं करती, वो बैकएंड पे भी काम करती है। जिस तरह अभी हमने मुझे सबने ना मैसेजेस किए थे कि आप ही हमें नोट्स चाहिए, मतलब 20 बैच के स्टूडेंट्स हैं कि मुझे नोट्स चाहिए, इस सेमेस्टर के पास पेपर चाहिए। तो हमने एक इनिशिएटिव किया था कि हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी ना डिपार्टमेंट के सामने लगा दी है कि वहाँ पे आके आप लोग टॉक अबाउट जी, तो हमने वो लगा दिए कि आपके पास जो भी नोट्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमने वो सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो आगे हम वो पहुँचा दें नोट्स, क्योंकि नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जैसे फातिमा है और हमारे क्लास में और बंदे हैं जो नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। फातिमा का नोटबुक आ गया तो 4 GB हाथ आ गई। एग्जैक्टली तो हमने ये इनिशिएटिव किया था कि एक छोटी सी लाइब्रेरी हो जिसपे ना मतलब फ्री हो और कुछ ना ऐसे इशू ना हो कि हम इतनी देर रखेंगे तो हमें फिर पे करना पड़ेगा या इस तरह होगा कुछ, तो ये शुरू किया था। अच्छा ठीक है ना, मतलब स्टार्टअप कल्चर की बात की जाए तो तुम लोगों के 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं,
लाइक एक तो तुम लोगों का टेक करीना वाला टेक आइडिया वाला सीन है, और दूसरा ये लाइब्रेरी वाला, ये तो तुम लोगों का खुद का स्टार्टअप है। तो लाइक कूल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लाइक हाँ, दीज आर द इनिशिएटिव जो मैं सुनना चाह रहा था कि हाँ क्या क्या ले रहे हो। जी हसन, आपकी साइड से कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जो हम 4th सेमेस्टर में थे तो उस टाइम एक डॉक्टर आरफा बानो हमें पढ़ा रही थी इस स्टार्टअप के हवाले से। तो उसमें जो है हमने तकरीबन सारे के सारे क्लास जो है 18 बेस्ड फ्रॉम खैरपुर, तो सारे के सारे जो क्लासमेट थे सब ने जो अपने ग्रुप्स बना के और हमने उसमें अप्लाई कर दिया था स्टार्टअप पाकिस्तान में, और टॉप 10 में भी हम गए थे, तकरीबन हमारे स्टूडेंट गए थे। उसके बाद हमारे अभी जो है लास्ट टाइम आइडिया के स्टार्टअप पाकिस्तान में एक और कंपटीशन किया था हमारा 1 सेंट बैच से, एक उसमें पार्टिसिपेट किया था वो, क्योंकि हम एक आइडिया गेस्ट लेके आए थे। क्योंकि उनका ये रोल होता है कि आप एक आइडिया लेके आओ, आप एक आइडिया जो टेक्निकल आइडिया हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व हो, कोई एक ऐसा आइडिया जो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सके इन डेली लाइफ में, वो आप पिच करें। अगर आपका आइडिया टीम बैठेगी, वो उनको मार्केटिंग सिस्टम होगा, अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे तो वो आइडिया जो है आपकी टीम जो है इन्वेस्टर से वो मीटिंग करवा सकते हैं। अभी भी जो है ये प्रोग्राम में ये बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप कोई भी आइडिया हो आप लेके आए, आप रजिस्टर करें। तो ऐसे ही हमारे आज जो चेयरमैन है वो भी बहुत सारा इंटरेस्टेड होता है ना आइडिया के स्टार्टअप के हवाले। तो इस हवाले से कि हमारा जो एक और स्टूडेंट है वो बहुत आगे गया है इस स्टार्टअप के हवाले से। वो उन्होंने बहुत सारे जो है स्टार्टअप जो है लॉन्च किए हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। मतलब देखो ना, यही चीज़ें होती है, स्टार्टअप की कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, तुम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, एंड लाइक आइडिया जिसको अपनी कम्युनिटी में मर्ज कर लिया है और लोगों को उसके बारे में बता रहे हो। तो यस, दिस इज व्हाट वी गिव टू आवर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। अच्छा, तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें पूछने को मिली। Sir, so like in the end of this amazing podcast, it's sweet and amazing discussions, open discussions. Thank you for letting me speak on behalf of my club, GDSC Muse. So पहले तो thank you so much sir for the podcast and इतने cool लोगों में मैंने अभी बात की है, and I feel proud कि मैं SCS को represent कर रही हूँ, अपनी society को represent कर रही हूँ, and I think my team के जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और जाहिर सी बात है आप टीम के सिवा कुछ भी नहीं हो। That's all about amazing. Thank you so much for a nice idea to meet a lot of clubs together at a time. करते रहेंगे सर, करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं।